a group of Jain professionals who gather together to know more about spiritual, deep spiritual knowledge that exists in Jainism, and we organize various programs on different concepts of Jainism from time to time. और उसी में अभी 16 कारण भावना सीरीज चल रही है और आज हमारा 8th सेशन है जिसमें आरत भक्ति और आचार्य भक्ति भावना प्रशांत भैया के बारे में हमें प्रशांत भैया बताएंगे और I'll just ask Piyush भैया to introduce प्रशांत भैया and thank you Prashant भैया for the session today. Thank you so much. Thanks Swati ji. It's always a pleasure and privilege to have our own Prashant bhai taking a session. I think for most members जो कि अभी regular है उनके लिए he doesn't need introduction, but for anybody who's new, I would just want to remind he's a truly an inspirational member of this group, and basically Prashant bhai represents what this group is all about. On one side, Prashant bhai has achieved wonderful professional success. He is the managing director of GE Power in India. It's a great global company which all of us are familiar with. He also heads across Asia Pacific GE Steam Power business, or earlier he has worked with Siemens in very senior roles. So on the professional side, he has achieved the pinnacle of success. He travels a lot. He has a busy schedule, as one would imagine. But in spite of that, he spends a lot of time on nurturing his spiritual part. He plays formal roles in his personal life. He can talk more about it. Some of us know he follows strict Jainism principles. Even when traveling, doesn't eat root vegetables and all that. He has been a founding member of Jainin. He's president of Humad Samaj Delhi NCR. He is also part of Jito JPF, vice president Apex, Jito Apex, which is a pretty big responsibility. And he has been actively involved with Aram Yog Foundation. तो सभी कुछ इतनी सारी चीजें एक साथ कर लेना पर्सनल और प्रोफेशनल साइड में, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट Jainin is trying to achieve, that you don't have to choose professional career or being religious. You can do both, and you can do both successfully, and they actually complement each other. So I will not take any more time. Prashant bhai, over to you. We are looking forward to hearing from you for today's session. सभी को जय जिनेंद्र. Swati ji, Piyush bhaiya, thank you for the kind introduction. I'm sharing my screen. Let me know if the screen is visible. So, yes. सभी को जय जिनेंद्र. 16 कारण की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज अरहत भक्ति और आचार्य भक्ति को हम कवर करेंगे. और कुछ नए मेंबर आज जुड़े हैं, तो बहुत क्विकली एक रिकैप है कि, और आज मैं अपने पर्सपेक्टिव से, जो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है और जो मेरा प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव है, मैं उसको एक साथ जोड़ करके एक तरह से 16 कारण भावना की प्रस्तुति करने की कोशिश करूंगा. और उसमें अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें. तो सबसे पहला जो टॉपिक है 16 कारण भावना, तो इसमें एक वर्ड होता है भावना. और कमल अंकल ने पहले सेशन में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भावना किस तरह से कितनी तरह की जैन धर्म में है और 16 कारण की महत्ता क्या है. तो आज मैं एक सिंपल भावना को लेकर के साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव उसमें जोड़ूंगा. तो पहला, भावना क्या है? भावना का अगर सिंपल इंग्लिश मीनिंग देखा जाए तो फीलिंग, और भावना का मतलब मन की कल्पना, ख्याल या विचार. भावना यानी चिंतन या ध्यान, और चिंतन या ध्यान यानी कि इस तरह से एक ऐसा है कि भावन जैसे अपने हृदय से जो निकल रहे हैं वो विचार, या फिर जैसे मन को भाता है या मन भावना होता है उसे भावना कहते हैं. तो ये भावना है. भावना क्या है? तो इस तरह की भावना है. और भावना में जैन धर्म में अलग अलग भावनाएं आती है, जैसे कि 12 भावना, और आज का विषय है 16 कारण भावना. तो हम 12 भावना पहले कर चुके हैं और अभी हम 16 कारण भावना आज कवर करने जा रहे हैं. तो भावना का 16 कारण भावना से क्या मतलब? तो 12 भावना जो है, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से जोड़ूं तो केवली और अरहंत केवली और तीर्थंकर. तो तीर्थंकर जो हैं परम केवली हैं, जो अपने समशरण लगता है, जिनका 5 कल्याणक होते हैं, और वो हमारे जैनिज्म में हाईएस्ट बेंचमार्क हैं. उनसे ऊंची पदवी जैन धर्म में और नहीं है. निर्वाण से पहले 5 कल्याणक के साथ तीर्थंकर होते हैं. तो ये हाईएस्ट बार है, बेंचमार्क है.
तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो हम काम करते हैं, हम लोग ये हमेशा अपने जॉब्स और करियर में देखते हैं कि हम कहते हैं सेट योर बार हाई, create value for yourself, create value for the organization, lead your teams with those standards that you choose to treat yourselves and to also encourage others. तो ये जो रोल मॉडल एक तरह से जो है कहते हैं कि आप भी रोल मॉडल बने और अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर करें और एक रोल मॉडल क्रिएट करें। और जब ये बेंचमार्क रेज करते हैं, इंस्पायर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स के रीच करने के लिए, तो उसमें हम ये भी कहते हैं कि देखिए आप यू हैव टू आल्सो डेमोन्स्ट्रेट रेस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के कोच हैं एलिसन मूर, उनके एक थॉट्स हैं जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो 16 कारण भावना जो है अपनी भावना में एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। जब हम देखते हैं तो भावना में हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे 16 कारण भावना आती है, जो कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हम कहते हैं करती है। तो अभी इसको प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में आगे ले जाते हुए, जब कोई भी गोल हाई सेट करते हैं तो वो नया बिहेवियर ट्रिगर करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं, कोई नया गोल है, अगर या तो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ फेज में ले जाना है या ट्रांसफॉर्मेशन फेज में ले जाना है या रिस्ट्रक्चरिंग फेज में ले जाना है, तो पहले गोल सेट किए जाते हैं और उस गोल को सभी के साथ अलाइन किया जाता है। उस गोल के साथ नए बिहेवियर्स ट्रिगर किए जाते हैं, उस ट्रिगर के साथ नया मोमेंटम क्रिएट होता है। तो गोल्स जो हैं एक तरह से अपना फोकस को अलाइन करते हैं और सेल्फ मास्टरी को प्रमोट करते हैं, जिससे कि इंस्पायरिंग वर्क स्पेस होता है। तो अगर ये मॉडल हम देखें, जो साइकोलॉजिकल मॉडल है, जो कोर बिलीफ्स को लेकर के फीलिंग्स, थॉट्स, बिहेवियर की तरफ आता है। बिहेवियर ऊपर के रूप से दिखते हैं और कोर बिलीफ अंदर होता है। अब हम 16 कारण की बात करें तो 16 कारण भावना में सुनील भैया ने पिछली बार बताया और कमल अंकल ने पहले वाले सेशन में बताया था, अभी आता होगा, दर्शन विशुद्धि भावना मैंडेटरी भावना है। तो अब हम साइकोलॉजिकल मॉडल को देखें तो कहते हैं कि एम्प्लॉय का बिहेवियर या आदमी का बिहेवियर जो होता है, वो बिहेवियर बाहर से दिखता है, उसके पीछे उसके सबकॉन्शियस लेयर में उसके फीलिंग्स और थॉट्स होते हैं। लेकिन ये फीलिंग्स और थॉट्स उसके कोर बिलीफ से ट्रिगर होते हैं। कोई भय से काम करता है, कोई लोभ से काम करता है। इस तरह से अपने अपने लोगों के अंदर कोर बिलीफ होते हैं। कोई कर्तव्यता से काम करता है। तो अभी अपने अपने लोग अपने अपने बिलीफ से काम करते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन करना है, किसी व्यक्ति में बदलाव लाना है, तो कहते हैं कि बिहेवियर, फीलिंग्स और थॉट्स पे चेंज करने में बहुत समय लगता है, पर अगर कोर बिलीफ में चेंज कर दें तो बहुत फंडामेंटल चेंज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट में अगर हम 16 कारण भावना को देखें तो 16 कारण भावना में जो है कोर बिलीफ जो है, हम उसको मान सकते हैं कि दर्शन विशुद्धि भावना है, जो हमने पहले सेशन में देखी थी। और दर्शन विशुद्धि भावना के साथ अगर हम दूसरी भावनाएं जोड़ते जाएं तो उससे अपने फीलिंग, थॉट्स और बिहेवियर जो है ट्रिगर होने लग जाता है और उससे हम एक अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं अपने साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल को कंपेयर करूं अपनी 16 कारण भावना से, तो इट इज इन अ वे ऑफ सेटिंग अ हाई बार फॉर आवरसेल्व्स इन भावना, और एक तरह से अपने कोर बिलीफ यानी कि दर्शन विशुद्धि को ठीक करके और उसके साथ कोई ना कोई भावना को जोड़ करके, या तो विनय संपन्नता या शील वृत्तेश्वर विचार, अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग, संवेग, शक्ति त्याग, शक्ति तब, साधु समाधि और वैयावृत्तिकरण, अभी तक हमने ये भावनाएं देखी हैं। उसके साथ कोई ना कोई एक भावना जोड़ दें तो इन एक या दो भावना के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। ऐसा हमने अभी तक के सेशंस में देखा है। उसी को अगर हम पैरेलल में लेकर आए ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में, उसकी जो मॉडल्स हैं उसमें, तो अगर बंदा अपनी कोर बिलीफ को, वैल्यूज को करेक्ट कर ले और उसके साथ अपने फीलिंग्स और थॉट्स को एसोसिएट करने ले जाए, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन और कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाता है, जिससे कि आप प्रोफेशनल गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। तो ये एक मेरा प्रोफेशनल पैरेलल था 16 कारण भावना के साथ। अब आज का विषय है अरहत भक्ति और आचार्य भक्ति। तो अब हम भक्ति की सीरीज शुरू कर रहे हैं 16 भावना में। अभी तक हमने जो देखा था उसमें आज अंतर है कि हम भक्ति की बात कर रहे हैं। तो भक्ति का अगर हम देखें तो विशुद्ध भावों से पूज्य पुरुषों के गुणगान करने को भक्ति कहते हैं। विशुद्ध भावों से, इसमें अगेन विशुद्धि आती है वापस से कि विशुद्ध भावों से, इसमें निस्वार्थ परिणाम और विशुद्ध पुरुषों का गुणगान करना, उसको भक्ति कहा गया है।
भक्ति का एक और पर्यायवाची क्षमा सागर जी महाराज ने 16 कारण की पुस्तक में बताया है कि भक्ति गंगा नदी के समान है, उसमें डूब जाए म्यूट हो गया प्रशांत आपका। अनम्यूट कर लिया मैंने, एक सेकंड। तो विशुद्ध भावों से पूज्य पुरुषों के गुणगान करना भक्ति है। भक्ति गंगा नदी के समान है, उसमें डूब जाना और पवित्र हो जाना। एक इस तरह से मेटाफोरिकल एक्सप्लेनेशन दिया है क्षमा सागर जी महाराज ने। और आराध्य के गुणों की प्राप्ति को भी भक्ति कहा गया है। आराध्य के गुणों की प्राप्ति यानी कि जो हम जिसको आइडलाइज करते हैं, जिसको हम पूज्य मानते हैं, उनके गुणों को प्रैक्टिस करना, अपने में उतारना, उसको भी एक आराध्य गुणों की प्राप्ति को भक्ति कहा गया है। भक्ति के 4 सोपान क्षमा सागर जी महाराज ने बताए हैं। पूज्य पुरुषों के प्रति अनुराग, उनके गुणों का स्मरण करना, उनके गुणों का चिंतन करना, उनके गुणों को प्राप्ति का प्रयत्न करना, ये 4 सोपान क्षमा सागर जी महाराज ने बताए हैं अपनी पुस्तक में। अब इसको प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में या फिर आज के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक तरह से हम जो भक्ति कह रहे हैं वो विशुद्धता के साथ है। हम कह रहे हैं इसमें सम्यक दृष्टि के साथ की भक्ति। हम ये कह रहे हैं निस्वार्थ भक्ति। हम ये कह रहे हैं कि जो गुण आप प्राप्त करना चाहते हैं उस गुण को अपने अंदर उतारना, उसको हम भक्ति कह रहे हैं। पर अगर आप देखिए आज की तारीख में किसी को अगर क्रिकेटर बनना हो तो या तो सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या अपने एक आइडल बैट्समैन को या अपने आइडियल क्रिकेटर को आइडलाइज करके उसकी फैन फॉलोइंग करके लोग उसकी तरह फॉलो करते हैं, सीखना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। या फिर आप यही देखोगे मूवीज में, बॉलीवुड में कोई अमिताभ बच्चन को या कोई टॉम क्रूज को या कोई अपने अपने रेलेवेंट स्टार्स को आइडलाइज करते हैं और उनकी क्वालिटीज को, उनकी हेयर स्टाइल को, उनके पहनने से कपड़ों को इनवाइब करते हैं और उस तरह से रोल मॉडलिंग करके आइडलाइज करके करते हैं। इसी तरह के कई तरह के फैन फॉलोइंग और कल्ट्स भी होते हैं। अब इनमें और ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव को छोड़ करके अगर प्राइवेट हम 16 कारण से जुड़े तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कह रहे हैं कि विशुद्धि हो और निस्वार्थ हो। और अब हम जो आज बात करेंगे 16 कारण में अरहत भक्ति और आचार्य भक्ति के बारे में। तो भक्ति कैसे करें? तो भक्ति में 2 चीज प्रमुख रूप से समाहित होती है। एक बहुत बार मैंने देखा है कि प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में लोगों को लगता है अरे यार ये क्या, हम भगवान के सामने मंदिर में जाके ये क्या कर रहे हैं, हम क्यों अपना तिरस्कार कर रहे हैं, हम क्यों भगवान की चापलूसी कर रहे हैं, हम क्यों भगवान के गुण गा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मैंने कई बार लोगों को सुना है कहते हुए, और यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्षमा सागर जी महाराज क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भक्ति में 2 चीजें प्रमुख रूप से समाहित होती है। भक्त अपने मौजूद स्थिति की अपेक्षा स्वयं की आलोचना करते हुए भक्ति करता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको ऑर्गेनाइजेशनली हम सेल्फ अवेयर कहते हैं। कि मैंने कई बार देखा है कि मैनेजमेंट में जब हम रिव्यू करते हैं कि ये बंदा अब अगला लीडर बनने के लिए तैयार है या नहीं है, हम उस समय देखते हैं कि ठीक है इस बंदे में सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ रिफ्लेक्टिव बिहेवियर है या नहीं। अगर हम देखें उसी कॉन्टेक्स्ट में तो हम भक्ति के गुण को कह रहे हैं कि भक्त क्या अपने गुण को जानता है, भक्त क्या प्रभु के गुण को जानता है, और प्रभु के गुण को और अपने गुण के डिफरेंस को जानता है, तभी वो भक्त अपनी आलोचना करते हुए प्रभु के गुण से अपने गुण को मैच करते हुए भक्ति कर पाएगा। इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है कि भक्ति जो है लेफ्ट ब्रेन से, यानी कि जो हमारा साइंटिफिक या मैथमेटिकल ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन है, उससे नहीं हो सकती है। भक्ति जो है राइट ब्रेन, जो कि स्पिरिचुअल या आर्टिस्टिक ब्रेन है, जिसमें ईगो को हम सबसाइड करें, अपने ईगो को सबस्यूम करें और अपने आप को हम एक सुप्रीम बीइंग, अपनी विनम्रता और अपने ईगो को दबा करके ही भक्ति हो पाती है। तो जो लोग भक्ति नहीं देख पाते हैं, मेरे ख्याल से उन्हें ये देखना होगा कि क्या मैं सेल्फ रिफ्लेक्टिव हूं, क्या मैं क्यों बैठा हूं यहाँ पे मुझे पता है, और शायद अगर ये मैं सिर्फ मंदिर में इसलिए बैठा हूं कि मेरे मम्मी पापा ने बोला है नहीं बैठूंगा तो नरक जाऊंगा तो शायद मुझे कुछ मिल जाएगा, ऐसे भक्ति करने में शायद वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भक्ति का कि अपने मौजूद स्थिति की अपेक्षा स्वयं की आलोचना करते हुए भक्ति करें, यानी कि अपने आप को समझे, अपने अंदर के राग द्वेष विकार को समझे, अपने अंदर जो कषाय हो जाती है, कभी हमें जो भी कषाय के कारण हम अपने आप को आकुलित व्याकुलित महसूस करते हैं, उस पर विचार करें और फिर तीर्थंकर की प्रतिमा को देखें मंदिर में और देखें कि कैसे वो अपने दोनों हाथ पे हाथ धरे
विराग अवस्था में मुस्कुराते हुए अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ भगवान के गुणों की प्रशंसा करते हुए भक्ति का आनंद लेना, ये दो रूप से भक्ति प्रमुख रूप से क्षमा सागर जी महाराज ने बताई है। और भक्ति में तीन बातें और भी बताई उन्होंने। भगवान के रूप का दर्शन करना। अब भगवान के रूप का दर्शन करना यानी कि भगवान के रूप से, उसके फिजिकल रूप से हम पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इसमें मेरे ख्याल से एक तो अपार्ट फ्रॉम दर्शन विशुद्धि, एक ज्ञान भी आवश्यकता है कि हम भगवान की वीतराग मुद्रा को समझे। दो पे हाथ जब महाराज भगवान की प्रतिमा धर के बैठी है, पद्मासन या खड़गासन मुद्रा में है, और उनके चेहरे पे वो हल्की सी जो मुस्कुराहट है और जो उनकी नासा पे दृष्टि है, उन सब का अर्थ क्या है। उनके रूप को देख करके अगर अपने मन में ये ज्ञान आए, इससे हम अपने माइंड को कोरिलेट कर सकते हैं कि हाँ, मेरे अंदर जो व्याकुलता है, शायद मैं आज मेरे जॉब की पोजीशन को लेकर टेंशन में हूं, पर इनको देखो, तीर्थंकर सामने 3 पद के धारी हैं, चक्रवर्ती शायद बने हैं, बड़े राजा हैं, पर उन्होंने सब त्याग कर दिया है और सिंहासन जो इनका इतना सुंदर है उसको भी छोड़ के उससे ऊपर उठ करके बैठे हैं, उसमें भी उनको इंटरेस्ट नहीं है। अष्ट प्रातिहारी उनके आसपास है, पर वो अष्ट प्रातिहारी में भी शायद उनका वैराग नहीं है। उसकी शोभा है, पर वो शोभा भी उनको उनसे कोई परिग्रह नहीं है। और दर्शन से दूसरी बात भक्ति में आती है, दर्शन से मिलने वाला उपदेश सुनना। अब उनके दर्शन करने से हम ये मानते हैं कि हम समो शरण में बैठे हैं, और समो शरण में तीर्थंकर का भगवान का जो संदेश है, जो उपदेश है, उसको सुनना या उसका चिंतन करना या उसके बारे में सोचना, और अपने ये दूसरा एस्पेक्ट है। और तीसरा एस्पेक्ट है अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना। और एक तरह से देखा जाए तो ये दो तरह से उन्होंने भक्ति को समझाया है, दो प्रमुख रूप से, या फिर अगर तीन तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अपने अंदर हम भक्ति का गुण कैसे ला सकते हैं। तो जब हमारी भक्ति क्लियर होती है तो हम देखते हैं कि अब अरहत भक्ति और आचार्य भक्ति क्यों है। तो हमने अब देखा जाए, हम आज बात कर रहे हैं 16 कारण भावना की, और 16 कारण भावना हाई है, बेंचमार्क है, तीर्थंकर की पदवी है, इससे ऊपर कोई पदवी इस संसार में नहीं है। उसके बाद सिद्ध पद है, जो कि तीर्थंकर हाईएस्ट पोजीशन प्राप्त करके सिद्ध पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो एक तरह से हमने बेंचमार्क किया है तीर्थंकर को, और हम कह रहे हैं कि अरहंत भगवान परम गुरु है, परम उपकारी है। तो अरहत भक्ति में भव्य जीवों को मार्ग दिखाते हैं अरहत भगवान। अरहत भगवान सब जीवों के कल्याण में निर्मित है। अब देखिए, साधारण केवली और तीर्थंकर केवली में क्या अंतर है। तीर्थंकर केवली 3 जगत का कल्याण करते हैं, अपने समावेशन में उपदेश के द्वारा उस सब जगत का कल्याण हितोपदेशी हैं। तो ये एक उनका एडिशनल क्वालिटी है, जिसको हम प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में आगे कंपेयर करेंगे, इसलिए उनकी भक्ति कहा गया है। उनकी भक्ति से स्व पर की कल्याण की भावना सहज रूप से उत्पन्न हो जाती है। ये अगर हम देखने लगे कि देखो, तीर्थंकर ने खुद का कल्याण तो किया ही किया, आज महावीर भगवान को लगभग 2500 साल हो गए हैं, और 2500 साल के बाद भी आज महावीर भगवान के निमित्त से मैं खुद के कल्याण करने की भावना भा रहा हूं। इतना तीव्र पुण्य महावीर भगवान का रहा है, और उन्होंने इतना उपकार किया है कि इस भव में 2500 साल के बाद भी करोड़ों भक्तों ने उनकी प्रतिमा को, उनके नाम को, उनके दर्शन को, उनके गुण को गा करके अपने कल्याण की भावना भाई है। तो इस तरह से उनकी खास बात यह होती है कि तीर्थंकर भगवान की भक्ति इसलिए इसमें खास तरह से कहा गया है। एक और चीज उन्होंने बताई है कि शुभ भावना। तो हम जानते हैं कि शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग और अशुभ उपयोग 3 होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अरहत भक्ति की भावना शुभ उपयोग में होती है। शुद्ध उपयोग तो जब आगे के गुणस्थान में होता है, तब आराध्य और आराधना में भेद नहीं होता, उस समय भक्ति का भाव भी खत्म हो जाता है। तो शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग और अशुभ उपयोग में, शुभ उपयोग में भक्ति का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम देखते हैं 16 कारण भावना में, तो अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति आता है, पर सिद्ध भक्ति नहीं आता है। ये भी एक तरह से दिखा रहे हैं कि हम भक्ति करें तो हाईएस्ट, ये हम तीर्थंकर की, हम 16 कारण की भावना बात कर रहे हैं, जो कि हाईएस्ट कैटेगरी की भावना है। और हाईएस्ट कैटेगरी में हम ये कह रहे हैं कि तीर्थंकर की हम भक्ति करें, जो कि मोस्ट इंस्पायरिंग इंडिविजुअल हमारे सामने रह चुके हैं। तो मोस्ट इंस्पिरेशनल बीइंग जो हमारे हैं, जो हमें खुद चलते हैं और चलना सिखाते हैं, उनकी भक्ति। There's some connectivity problem. Uncle, not at our end. ठीक है, तो इस तरह से सिद्ध भक्ति को एक्सक्लूड किया गया है,
और अरहत भक्ति को इंक्लूड किया गया है। हम आगे देखते हैं कि आचार्य भक्ति दूसरी भावना है आज की। अब आचार्य पदवी जो है हम देखते हैं पंच नमस्कार मंत्र में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु। अब उसमें आचार्य पदवी को चुना गया है भक्ति में, और आचार्य भक्ति को अगर मैं ड्रॉ पैरेलल करूं तो इसमें कहा गया है कि आचार्य के गुणों से जुड़ना, उनके गुणों का चिंतन करना। आचार्य 36 मूल गुण के धारी है और उनके और 8 गुण भी कहे गए हैं। ये हम बाद में कमल अंकल जी से, अवाई के अंकल जी से और भी समझेंगे। उनके जैसे बनने की भावना पाना। आचार्य मुनि संघ के नायक होते हैं, अब वो लीडर हैं। तो आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु में आचार्य जो है वो लीडर कैटेगरी में आते हैं, वो नायक हैं। वे पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं और शिष्यों को भी कराते हैं। और वे एक नाव की तरह है, उसकी उपमा दी है एक बोट की तरह, कि वो एक नाव की तरह खुद तो क्रॉस करते ही हैं पर दूसरों को भी साथ में कराते हैं। तो अगेन दे आर सेल्फलेस बट दे आर ऑल्सो इंस्पिरेशनल। एट द सेम टाइम वो खुद के अलावा दूसरों का भी कल्याण करते हैं। तो अगर आप देखें अरहत भक्ति में और आचार्य भक्ति में, दोनों में कॉमनैलिटी ये आ रही है कि हम ऐसा लीडर चुन रहे हैं जो लीडर सेल्फलेस है, और सेल्फलेस के अलावा साथ साथ में हितोपदेशी है और 3 जगत का कल्याण करने वाले हैं। और वो खुद भी चलते हैं, दूसरों को भी उपदेश देते हैं, अपने मन में करुणा भाव धारण करते हैं और सभी को उस राह पे चलने का मार्ग बताते हैं। और आचार्य क्या करते हैं, वो संघ नायक भी होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आचार्य हम देखें, आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हैं, ऐसे कई आचार्य जो हमें आज भी देखने मिलते हैं। उनके संघ में उन्होंने पिछले कई सालों में कई लोगों को दीक्षा दी है, और ऐसे कई लोग हैं, जो हजारों लोग हैं जो कि लाइन में हैं कि उन्हें भी दीक्षा मिल जाए और वो उनके मार्ग पे चल पाए। तो हम देख रहे हैं कि वो खुद तो अपना कल्याण कर भी रहे हैं पर साथ साथ में इंस्पायर कर रहे हैं कि दूसरे भी उनके मार्ग को चलें। तो ऐसे आचार्यों की भक्ति को यहाँ पे लिया गया है। तो अरहंत भक्ति और आचार्य भक्ति, इसमें इंस्पिरेशन हम ये लें कि 16 कारण भावना में हम हाईएस्ट इंस्पिरेशनल लीडर को चुन रहे हैं, और हाईएस्ट इंस्पिरेशन लीडर से एक और चीज हम कॉमनैलिटी में देख रहे हैं कि वे खुद का कल्याण तो करते भी हैं और साथ साथ में पूरे 3 जगत का कल्याण करने में मार्ग दिखाते हैं। अब इसको अगर मैं प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो एक स्टीफन कवे का मॉडल है जो मैं काफी इंस्पायर्ड हूं और मैंने काफी इसको यूज भी किया है। तो इसमें भी एक लीडरशिप का एक मॉडल है जो कहते हैं कि डिपेंडेंट लीडर होते हैं, इंडिपेंडेंट लीडर होते हैं और इंटरडिपेंडेंट लीडर होते हैं। ये मॉडल जब मैंने स्टीफन कवे का पढ़ा तो मुझे परस्पर उपग्रह जीवा नाम का बिल्कुल इसमें लगा कि मॉडल उसी पे बना हुआ है। और देखा जाए तो इन्होंने एक विन 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 क्राइटेरिया बताया है, और वो विन 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 क्राइटेरिया अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये मेरे प्रोफेशनल करियर में काफी मेरे लिए यूजफुल रहा है। और अगर मैं देखूं तो जितने भी बिजनेस सॉल्यूशंस अगर आप देखें तो अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें जिसमें आपकी खुद की प्रॉब्लम और समाज की प्रॉब्लम और दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करें तो वो बिजनेस ज्यादा सक्सेसफुल और सस्टेनेबल होता है। तो ये मॉडल में अगर मैं देखूं डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंस, एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एग्जांपल आप ये मान के चलिए कि एक गांव है, उस गांव में और कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ पेड़ है और लोग अपने भोजन के लिए सिर्फ पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट है। अब उस गांव में जितने भी लोग हैं वो अपने पेड़ के नीचे जाते हैं, जो फल मिलता है उसे खाते हैं। अब ये उस गांव का आप कल्पना करिए कि मैं गांव एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो बंदे पेड़ के नीचे खड़े हैं वो डिपेंडेंट है कि अरे ये फल जो मिलेगा मैं उसे खाऊंगा। अब ये डिपेंडेंट है कि भाई ये फल कैसा है, खट्टा है, चलो खट्टा है तो क्या करें, हमारे पास तो यही फल है, अरे ऐसे कैसे खट्टे फल है, अरे मुझे इतना खट्टा नहीं लगता है, मुझे अच्छा लगता है, या जो भी है। तो ये दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर सेटिस्फैक्शन और आउटकम ऑन द फ्रूट दैट इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। तो ये एक तरह से डिपेंडेंट हो गए। अब आप एग्जाम्पल इसको देखिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं कि भाई मैनेजर ने बोला मैंने कर दिया, या फिर ये तो मेरा जॉब है, मुझे ये करना था इसलिए मैंने कर दिया। तो अपना जो ज्यादा उससे शुद्ध ज्ञान या ज्ञान नहीं लगाएंगे, बट दे विल डिपेंड कि भाई मेरे को इतना पता था मैंने कर दिया। अब उसके ऊपर एक लेवल आता है इंडिपेंडेंस। तो मान के चलिए इसमें से एक बंदे ने सोचा कि यार ये क्या है, मैं उस रोज गांव में उस पेड़ के नीचे जाऊं और उनके साथ में बैठ करके मुझे बड़ा खराब लगता है, मैं अपना खुद का पेड़ अपने घर पे लगा दूं और उसके नीचे मुझे जो मिले मैं वो खाऊं और मैं शांत रहूं, मुझे उसमें कोई राग और द्वेष नहीं है, मैं खुश हूं, मैं अपने में खुश हूं। अब उन्होंने क्या किया, भाई ठीक है मेरा पेड़ लगाया, मेरा फल आया, जो आया मुझे ठीक, मैंने खाया, मेरा काम हो गया, मुझे बाकी से लेना देना नहीं है। एक तरह से वो अपना इंडिपेंडेंस, उन्होंने अपना डिपेंडेंस औरों से हटाकर
उन्होंने अपनी डेस्टिनी को एक तरह से अपने हाथ में ले ली। तो ये इन तरह से इंडिपेंडेंट लीडर बन गया। अब इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर भी आते हैं, इसमें फंक्शनल एक्सपर्ट्स जैसे सेफ्टी, क्वालिटी, जो नॉलेज बेस्ड टेक्निकल एक्सपर्ट्स है वो आ जाते हैं। और इसमें जो है इंडिपेंडेंस तो है आपके फंक्शन की, कि आप अपने कार्य सारा अपने हिसाब से अपने टीम से कर पाओगे, पर लार्जर टीम से आपका लेना देना नहीं है। आप अपने डोमेन में काम करोगे, अपनी एक्सपर्टीज में काम करोगे और अपने में रहोगे। तो एक तरह से इसमें थोड़ी ग्रोथ है, पर एक ग्रोथ भी लिमिटेड है। इसके ऊपर अब तीसरा एग्जाम्पल आता है कि एक आदमी देखता है कि यार देखो, इस गांव में कुछ लोग पेड़ के नीचे खा रहे हैं और कुछ लोग अपने घर में पेड़ लगा के खा रहे हैं, और बाहर तो जमीन पड़ी है, मैं काम करता हूँ, बहुत सारे पेड़ लगा देता हूँ, 10 साल बाद लोगों को व्यवस्था मिल जाएगी। अब इसने क्या सोचा कि एक प्रॉब्लम को देखा और उसने गांव में कई सारे पेड़ लगा दिए, और पेड़ लगाने के बाद अब कुछ समय बाद लोग उनके पेड़ पे जाने लगे। अब इन्होंने उनसे टॉल खरीदना लेना शुरू कर दिया, और ये बड़े बिल्डर, बड़े प्रॉपर्टी ओनर, बड़े पॉलिटिशियन या बड़े लीडर बन गए, क्योंकि उन्होंने कुछ दूसरा सोचा, अपने खुद के बारे में ना सोच करके बाकी सब गांव वालों को देख करके कुछ एक प्लान बना करके बड़ा काम किया। अब वो लीडर बन गए। अब ये तीनों में फर्क क्या है? माइंडसेट का। बहुत ज्यादा एफर्ट का फर्क नहीं है, बट माइंडसेट का फर्क है। डिपेंडेंट माइंडसेट, इंडिपेंडेंट माइंडसेट और इंटरडिपेंडेंट माइंडसेट। तो एक तरह से अगर मैं ड्रॉ पैरेलल करूं तो तीर्थंकर इंटरडिपेंडेंस में तीन जगत के कल्याणी एकदम हाईएस्ट ऑर्डर के लीडर हैं, और हम डिपेंडेंट कैटेगरी से इंडिपेंडेंट कैटेगरी से इंटरडिपेंडेंस की ओर बढ़ने के लिए इनसे इंस्पिरेशनल ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये कुछ मेरे थॉट्स हैं जो मैं आज इस थॉट्स के साथ I like the quote from John Steinbeck कि somewhere in the world there is defeat for everyone. Some are destroyed by defeat, some are made small by victory. Greatness lives in one who triumphs equally over defeat and victory. तो समता भाव जो है उसी में ग्रेटनेस है, ऐसा कहीं ना कहीं मॉडर्न स्पीकर्स भी कहते हैं। तो इस बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, और आई होप कि ये कुछ प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट से मैंने 16 कारण भावना को जोड़ने की कोशिश करी है। तो अब जो विषय के बारे में टेक्निकल डिटेल्स है उसके लिए मैं वाईके जैन और कमल अंकल की ओर रिलाय करूंगा, बट मैंने कोशिश करी है कि मैं अपने प्रोफेशनल वर्ड से इसके साथ जो ड्रॉ पैरेलल कर पाऊं वो करूं, और इस तरह से 16 कारण भावना को पेश करूं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया, थैंक यू सो मच। अमेजिंग आर्टिकुलेशन, और मतलब प्रोफेशनल वर्ल्ड से पैरेलल तो मेरे को लगता है आपसे बेटर कोई दे भी नहीं सकता है, इतना इतना अच्छा इन द बिगिनिंग एंड टुवर्ड्स द एंड। So thank you so much. But मतलब just taking the discussion forward, I'll request Jaswal uncle and YK uncle to talk a little more about Arhat Bhakti and Acharya Bhakti before we open the house for questions. प्रशांत, हमारी तारीफ तो इसने खूब कर ही दी है और आगे करने की जरूरत नहीं है। एक्सेलेंट। मुझे बहुत एक ये चीज बहुत अच्छी लगी तुम्हारी, सेल्फ अवेयरनेस, अपने और आराध्य के गुणों को जानना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें डिफरेंशिएट करना, मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ हूँ। भक्ति का ये मेन पर्पस होना चाहिए, सिर्फ कोरी भक्ति थ्योरेटिकल नहीं, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। बहुत सुंदर तुमने पॉइंट दिया, मैं अपने साइट के लिए इसको नोट करके ले जा रहा हूँ तुम्हारी परमिशन से। एक बात। दूसरा, जो तुमने दर्शन विशुद्धि को मैंडेटरी कहा, ये इसमें दो मत हैं। मैंडेटरी कुछ लोग कहते भी हैं और कहते हैं एनीवन कैन बी मैंडेटरी, 16 में से किसी एक को करो तो 16 के 16 आपके अंदर आ जाएंगे, समाहित हो जाती है। दूसरा पॉइंट मैं आपसे जानना चाह रहा था, उसमें मैं सोच रहा था, तीर्थंकर भगवान तीनों लोक का कल्याण करते हैं, तो नरक का कल्याण और थोड़ा करके बताओ भाई, तब बात बनेगी पूरी। दो का तो समझ में आ गया, तीसरे का कल्याण किस अपेक्षा से? आपके मन में कुछ था या अपन इस पे चर्चा करें? तो एक मैंने सिर्फ ये सुना है कि जब जब तीर्थंकर होते हैं उस समय कुछ एक क्षण के लिए तीनों लोक में एक सेकंड के लिए जो है सुकून तो मिल जाता प्रशांत, पर यहाँ बात हो रही है कल्याण की, तो उस पर अपन विचार करें तो कल्याण भी करेंगे। कैसे? उन्होंने जो उनके प्रवचन सुने
उनको उसका जो स्मरण हुआ उससे वो सम्यक दर्शन डेवलप कर लेते हैं, साथ में न रखकर, और बेचारों के पास कोई साधन नहीं। तो यहाँ पर भी जो तुम्हारे ये स्टेटमेंट है पूरा फिट बैठता है, लेकिन इसमें नयापन एक निकला कि नारकियों को भी कल्याण करा दिया तुमने, जिसके बारे में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, पर आज समझ में आया कि नहीं, उनको भी होगा। क्यों? उनके प्रवचन चाहे डायरेक्टली वो सम्मिश्रण में कभी रहे हों या किसी गुरु के थ्रू उन्होंने सुने हों, हैं तो फाइनली तीर्थंकर के ही, उनके प्रवचन से ही तो उन्होंने सम्यक दर्शन, उनका कल्याण हुआ। तो ये वाला पॉइंट भी तुम्हारा बिल्कुल वैलिड और सही रहा। दूसरा, सिद्ध भक्ति की एक बात आई थी। सिद्ध भक्ति के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुनिराज सिद्ध भक्ति ही प्रेफर करते हैं, वो ज्यादा करते हैं। शावक लोग अनंत भक्ति उनको एडवाइस की गई है, वो करते हैं। इसका कारण एक गुरुदेव ने बड़ा अच्छा बताया था। उन्होंने ये कहा कि उनको क्या चाहिए, उनको सिर्फ एक लक्ष्मी चाहिए, मोक्ष लक्ष्मी, जो किसके पास है, सिद्ध भगवान के पास है। पर तुम शावकों को क्या चाहिए, दोनों लक्ष्मी चाहिए, मोक्ष की भी तमन्ना है तुमको और श्री लक्ष्मी की भी तमन्ना है, जो कि समूह शरण श्री लक्ष्मी का हाईएस्ट सिंबॉलिकल वो है। जी, उसको मैं देखता हूँ तो मुझे श्री लक्ष्मी के बारे में भी मुझे चाहिए श्री लक्ष्मी। इसलिए शावकों को एडवाइस किया जाता है कि अनंत भक्ति करें, और मुनियों को कहा जाता है कि आप प्रेफरेबली सिद्ध भक्ति करें। चलिए, एक ये दोनों भक्ति सेल्फलेस, आचार्य की भी और श्रीधंकर भगवान की भी। इससे मुझे याद आ रहा था कि आचार्य श्री जब अपने मुनियों के साथ सामायिक करते हैं, उनको बीच बीच में आंख खोल के देखते हैं कभी कभी। अब बताओ, सामायिक में आंख खोल रहे हो तुम, क्यों भाई? इसलिए कि उनकी ड्यूटी है ये, अपने उद्धार के साथ साथ और रादर अपने उद्धार से ज्यादा अपने शिष्यों के कल्याण की भावना। तो वो जो आपने एक पॉइंट बोला कि सेल्फलेस, ये दो होते हैं, इसलिए इनकी भक्ति आपने शायद ग्रुप भी की हो कि एक साथ आपने इसको बोला। 2-3 पॉइंट मुझे आचार्य श्री के अच्छे लगे थे भक्ति पर, वो मैंने नोट किए हैं। अरहत भक्ति, भीतर से होनहार अरहत पद की पहचान कराए, वो भक्ति को कहते हैं अरहत भक्ति, ये आचार्य श्री बोलते हैं। फिर भक्ति के बारे में कहते हैं, सबसे तो भैया तुम्हें बहुत डर लगता है तो भक्ति करो, सबके मारे तो अपन लोग बहुत घबराते हैं, तो बोले भक्ति तो कर सकते हो, इट इज कन्वीनियंट, ये कर। भक्ति के बारे में एक और डेफिनेशन उन्होंने दी, भगवान और भक्त को जो जोड़े वो भक्ति। आगे कहते हैं, मन लगाने को सामूहिक भक्ति करना और इंडिविजुअल भक्ति अकेले में करना, लेकिन मन सामूहिक भक्ति से ज्यादा लगता है। एक इसमें उन्होंने एक और पॉइंट एक जगह बोला है कि तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी, 20 तीर्थंकरों की भक्ति कहीं पुराने आचार्यों ने नहीं ली, बाकी सबकी भक्ति है, सिद्ध की भी, अरहंत की, आचार्य की, सबकी है, लेकिन 20 तीर्थंकरों की भक्ति पुराने उनमें नहीं मिलती। ये अपने को नोटिस करने वाली चीज है। और लास्ट आइटम, अति भक्ति ये विवेक की कमी बताती है, ये आचार्य जी का कहना। कमल भाई, आप एक बार लास्ट में कह रहे थे अति भक्ति, यानी कि बहुत ज्यादा भक्ति। हाँ, अति, मरे ही जा रहे, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हाय 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 हाय। इसका एग्जाम्पल मैंने देखा, क्षमासागर महाराज जब गए, दहाड़े मार मार के लोग रो रहे थे और बहुत दिनों तक रोते रहे, पर मुझे उस समय रोना आया, 15-20 मिनट में भी रोया, उसके बाद भी तो नॉर्मल। और आज मैं उनके लिए कोई तड़पता नहीं, पर उनके गुणों को याद करके कोशिश करता हूँ, उन्होंने जो मुझे दिशा निर्देश दिए उन पे चलने की कोशिश करता हूँ, ये भक्ति हुई। और मैं दाढ़ा ही मारता रहूं, हाय 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 क्षमासागर महाराज, तो ये हो गई अति भक्ति, जो विवेकहीन मानी जाएगी, राइट? और अंकल 20 तीर्थंकर की भक्ति क्यों नहीं है?
हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो, मेरे यहाँ फोटो किसके होंगे? मेरे राष्ट्रपति की। जबकि मेरा राष्ट्रपति बहुत कम पढ़ा लिखा है, बहुत कम पावरफुल है। अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत ज्यादा पावरफुल है पूरी दुनिया में, उसके फोटो में अपने यहाँ क्यों नहीं लगाता? यही कारण है कि मैं भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों की भक्ति का ज्यादा महत्व देता हूँ। इसीलिए मेरे मूल प्रतिमाएं आप पाएंगे हमेशा तीर्थंकर, 20 तीर्थंकरों की अलग होगी, लेकिन मूल प्रतिमा आप हमेशा भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों की पाएंगे। ये शायद कारण रहा कि हमारे यहाँ 20 तीर्थंकरों की पुराने आचार्यों ने भक्ति नहीं लिखी और इधर सारे तीर्थंकरों की भक्ति, सिद्ध भगवान की भक्ति, आचार्य भक्ति आदि सब लिखी गई। जय जिनेंद्र। और अंकल जस्ट वन मोर थिंग, आपने शुरू में बोला था कि मतलब नॉट शुरू में, बीच में आपने बोला था कि भगवान और भक्त को जो जोड़े, कुछ आपने भक्ति का परिभाषा दी थी बीच में। वो क्या थी? वो समझ नहीं आई थी। हाँ, मन लगाने को सामूहिक और वैसे इंडिविजुअल भक्ति का अपना एक महत्व होता है, पर जब मन न लगे तो सामूहिक भक्ति करो, है? ठीक है, चलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कमल अंकल। भक्ति का शाब्दिक अर्थ है ना, वो जुड़ना होता है। भक्ति जुड़ने को कहते हैं, विभक्ति अलग करने को कहते हैं और भक्ति जुड़ने को कहते हैं। तो जब आप जुड़ जाते हैं तब फिर वो सारी चीजें अपने आप आ जाती है ना। जुड़ने में फिर आप देखते हैं आप कहाँ पर हैं, वो कहाँ पर हैं, कितना रास्ता तय करना है। इसीलिए जो प्रशांत ने बताया था कि ये 4 सोपान है, सोपान का मतलब सीढ़ी, आलू, उसमें अंतिम क्या है कि अंतिम लक्ष्य क्या है? इन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते आप वही गुण प्राप्त करना चाहते हैं जो कि जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं उसमें है। तभी कहते हैं उसको कि वंदे तद्गुण लब्धे, कि हम भक्ति आपकी कर रहे हैं इसलिए कि आपके गुणों को प्राप्त करें। वही है भक्ति की अंतिम परिणति, वही उसका उद्देश्य है, वही उसका लक्ष्य है, उसी को प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो उसके लिए फिर नेचुरली आपको पहले तो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कहाँ पर हैं, आपकी क्या स्थिति है। तब उसमें आप आलोचना जब करते हैं अपनी, आप अपने अंदर झांकते हैं, अपने अंदर आपको कमियां मिलती हैं और आप अपने आराध्य की स्थिति देखते हैं और उससे अपना अंतर आप आंकते हैं और उसी को फिर आप धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं और आप उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये है भक्ति का सिद्धांत। तो उसमें पंच परमेष्ठी हैं, तो सभी हमारी भक्ति के पात्र हैं। और मुझे इसके आगे अगर कोई प्रश्न आए तो फिर उसमें बात की जा सकती है, वरना कहने को तो है। अब जैसे 36 गुण आचार्य के 36 मूल गुण बताए हैं, तो साधुओं के 28 होते हैं, तो वो 28 तो उनके कॉमन है, सभी के होते हैं। वो तो आधार है, यानी वो तो केवल, यानी भावलिंग में भी उसमें द्रव्यलिंग में भी अपेक्षा की जाती है कि वो 28 मूल गुण तो उनका तो पालन होना चाहिए, निरतिचार। और फिर आचार्य के उसके ऊपर 36 मूल गुण और हैं। 36 मूल गुण क्या होते हैं? 12 तप, 12 प्रकार के तप। इसका ये अर्थ नहीं है कि जो आचार्य पद पर नहीं है वो तप नहीं करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन आचार्य के लिए वो मूल गुण है 12 के 12। और 10 धर्म, जो कि दशलक्षण में जिनकी हम एक एक दिन करके जिनकी चर्चा करते हैं और जिनको हम अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। तो 12 और 10 22 और पंचाचार, इसके विषय में बताया प्रशांत ने, तो दैट मेक्स इट 27। और 6 आवश्यक और 3 गुप्तियां, मन वचन काया की। तो आवश्यक आप देखेंगे तो आवश्यक 28 मूल गुणों में भी सम्मिलित है। साधुओं के मूल गुणों में वो आ जाते हैं और आचार्य में भी उसका जिक्र किया जा रहा है। तो आचार्य के मूल 6 आवश्यक के पालन में और सामान्य साधुओं के 6 आवश्यक के पालन में अंतर है।
तो उसका जो उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसकी जो रिगर होती है, उसकी जो स्ट्रिक्टनेस होती है, वो आचार्य के स्तर पर आकर एक दूसरे ही स्टैंडर्ड की हो जाती है। तो उसको बहुत एक इसमें आपने सुना होगा, इसमें देखा होगा कि जो पुस्तक है क्षमा सागर महाराज की 16 कारण भावना में, तो उसमें उन्होंने एक वृतांत दिया है, एक प्रसंग का उल्लेख किया है कि कहीं लंबा विहार करके आए आचार्य और उनके साथ में संघ में जो लोग, जो साधुगण थे, तो काफी थकाने वाला था और सब लोग पहुंचकर विश्राम के लिए बैठे। तो आचार्य श्री ने कहा कि बहुत आज थकान बहुत हो गई है, तो अब विश्राम करने का समय बनता है। तो साधुओं ने समझा, उनके संघ के साधुओं ने समझा कि वो आचार्य श्री विश्राम करना चाहते हैं। तो सबने उसकी अनुमोदना की और कहा हाँ हाँ आचार्य श्री आज बहुत लंबा विहार हो गया, अब विश्राम करना चाहिए। तो वो हंस दिए और साधु लोग उनको विश्राम के लिए छोड़कर जाने का उपक्रम करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि आचार्य खड़े हो गए और उन्होंने आवर्ती की सामयिक से पहले। तब लोगों ने कहा कि अरे आचार्य श्री आप तो विश्राम की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो अपना करने लगे सामयिक खड़े होकर। यानी मतलब ये था कि तुम आराम कर लो, थक गए होगे, पर मैं तो आचार्य हूं ना, मेरा जो ये छठ आवश्यक है, सामयिक एक आवश्यक है मेरे लिए तो ये बिल्कुल, इसमें कोई किसी भी तरह की ढील नहीं हो सकती। मैं तो समय पर सामयिक करना ही करना है। सामयिक का समय हो गया तो करना ही करना है, चाहे कितना भी क्लांति हो, कितनी भी श्रम से थके हो, लेकिन उसमें कोई ढील नहीं हो सकती क्योंकि वो दूसरे स्तर का है। इसमें कमल एक और पॉइंट ये था, नॉर्मली वो बैठ के करते थे सामयिक। हाँ, तो खड़े होकर कर रहे हैं। तो उसने खड़े होके किया कि मैं है तो इसलिए खड़े होके, तो मुनि बैठ के तो करेंगे कम से कम, कि मैं लीडर हूँ, सबसे आगे चलूंगा मैं। करेक्ट। तो he is held to a higher standard, higher rigor. चलिए, एक विशुद्ध सागर जी का मैं पढ़ रहा था कहीं, भक्ति को छोड़ने के लिए की जाती है। भक्ति में रमने के लिए नहीं कि हम तो भाई जिंदगी भर भक्ति करते रहेंगे, जैसे कुछ अन्य मतों में ही देखा जाता भक्ति ही सब कुछ है। हमारे यहाँ भक्ति इंपॉर्टेंट है, पर क्रच है, एक सपोर्ट है, बैसाखी है, उसको लेकर आप चलते हैं। और जब आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपने पैरों पर चल सके, तो तब भक्ति के सपोर्ट की जरूरत नहीं रहती और उसको आप छोड़ देते हैं। तो इसीलिए जैसा प्रशांत ने भी कहा था कि शुद्धोपयोग में आकर भक्ति खत्म हो जाती है, वहाँ भक्ति की गुंजाइश नहीं रहती है। मुझे प्रोफेशनल डाइवर्सिटी की तरफ से भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा 16 कारण में, कि एक तरह से अगर देखा जाए तो कुछ लोग हैं जिनके स्वभाव में सेवा करना नेचुरली आता है, वो सेवा कर लेते हैं, तो हो सकता है कि उनके लिए वैयावृत्तिकरण वाली भावना से उनका तीर्थंकर का प्रवृत्ति का बंद हो जाए। कुछ लोग होते हैं जो भक्ति कर लेते हैं आसानी से, उनको लगता है कि मैं भक्ति कर सकता हूं मैं, पर मेरे से बाकी नहीं होता, तो शायद उसके लिए भक्ति वाला एक मार्ग बन जाए। तो इसीलिए कोई भी 16 कारण में मेरे ख्याल से मल्टी टाइप पर्सनालिटी के लिए एक ऑप्शन दिया गया है कि भाई तुम ऐसे पर्सनालिटी टाइप के हो, चलो तुम्हारे लिए भक्ति है, या तुम्हारे लिए वैयावृत्ति है, या तुम्हारे लिए साधु समाधि है, या तुम्हारे लिए, तो आई थिंक काफी डाइवर्सिटी के हिसाब से कि भाई अपना नेचर देखो कि आपके नेचर में क्या कंफर्टेबल है, क्या नेचुरल है, उसके हिसाब से भी आपके लिए रास्ता है। एक्चुअली सब ये इंटरकनेक्टेड है प्रशांत, सारी इंटरकनेक्टेड है। और जैसे कि इसमें एसेंशियल तो अगर आपने विशुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो बाकी सब उसमें समाहित है, सारी उसमें आ गई। पर कहीं से भी शुरू करके कहीं भी पहुंच सकते हैं। मतलब ये है कि ये तो जैसे 10 धर्म में भी देखा है, तो इसी तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं और इसमें कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, ये सब एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं। अब ये दृष्टिकोण की बात होती है कि कहाँ से आप देख रहे हैं, और उस समय वो लगता है कि यही प्रमुख है और बाकी चीजें दूर हैं, ये नजदीक है, फोकस उस पर है सारा इंटरकनेक्टेड। और प्रशांत का ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंडिविजुअल की नेचर और कैपेसिटी के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होंगे। जैसे अविचल सागर जी महाराज ने एक पॉइंट बताया
कि तप तुम लोग कहते हो तप करो तप करो तप करो, और 6 तरह के तप कर लो, बाह्य कर लो, 6 अंतरंग तप कर लो, लेकिन तुमने ये देखा तुम्हारी नेचर क्या है? मानो तुम क्रोधी स्वभाव के हो और तुम उपवास पे जोर दे रहे हो, तो तुम्हारा क्रोध और बढ़ेगा। तो तप करने से तुम्हारे अंदर जो वीकनेस है वो और बढ़ रही है। तुमको वैयावृत्ति करनी चाहिए आदि, लेकिन तप को अवॉइड करना चाहिए। इस तरह से इंडिविजुअल को स्टार्टिंग पॉइंट अपने सेलेक्ट करने हैं। ये अलग बात है घूम के सब 16 को कवर कर लेंगे। अंततः देखें तो आप अगर इतना जान लें कि शरीर और आत्मा ये अलग अलग हैं, तो सब उसी में सब आ जाता है। सारा कुछ आप उसी से डिराइव कर सकते हैं। भेद विज्ञान अगर हो गया तो सब कुछ उसी के अंदर आ जाता है। और आपको याद भी होगा, प्रशांत को तो इष्टोपदेश पूरा याद है, अभी बता देंगे ये कौन सा श्लोक है। इसमें ये है कि सब सारा उसका विस्तार ही है, केवल इसी बात, यही मुख्य तत्व है और बाकी सब उसी का विस्तार है। अब चूंकि शिष्यों की बुद्धि थोड़ी कम होती है, तो उनको समझाने के लिए भांति भांति से कहा गया है कि ये इतने सारे धर्म और इतने सारे भावना और इतना ये उतना वो, अंततः तो उसी से आप डिराइव कर सकते हैं सब कुछ, एवरीथिंग। आपका आत्मस्वरूप क्या है और स्व क्या है और पर क्या है, इतना ज्ञान हो गया तो ये पर्याप्त है कि ये उड़द की दाल है और ये उड़द का छिलका है, बस। ज्ञान तो हो जाता है पर अंदर उसे उतारना कठिन हो जाता है। उसी के लिए तो आचार्यों ने और अरहंत भगवान ने हमारे उपदेश, हमारे हित के लिए इतना सब विस्तार से समझा दिया है। एक भक्ति का और पॉइंट था, इसका मापदंड क्या है? तुम भक्ति कर रहे हो तो उसका मापदंड भी तो कुछ तय कर लो। मापदंड है विरक्ति। क्या भक्ति के साथ तुम्हारी विरक्ति बढ़ रही है तो तुम्हारी भक्ति कारगर है, वरना थ्योरेटिकली। ये भी अमेजिंग पॉइंट है अंकल। ये भी अमेजिंग पॉइंट है कि भक्ति का मापदंड है विरक्ति। वो बहुत जरूरी है बेटे, वरना हम तो भक्ति करे चले जा रहे हैं और पूरी दुनिया करी रही है। क्योंकि तो बिल्कुल, और लोग ये मतलब जो भक्ति कर रहे हैं वो भी ये सोचते हैं कि मैं ज्यादा करूं, वो ही मेरी ग्रेटनेस है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं 2 घंटे करता था, फिर 3 घंटे करूं, फिर 4 घंटे करूं। करेक्ट। कमल कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था गोइंग बैक टू इष्टोपदेश, प्रशांत फेवरेट, तो उसमें है ये कि दो श्लोक हैं, वो युग्म है उनका, वही आगे पीछे करने से हो जाता है। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ चित्तमुत्तमम्। मतलब ये कि सुलभ होने पर भी अगर विषयों के प्रति विरक्ति होने लगती है, भाते नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि उसके साथ ही साथ जो उत्तम तत्व है, यानी जो आत्म तत्व है, उसकी संवित्ति में वो आता जाता है। आपके चिंतन में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके लाइफस्टाइल में वो सब आने लगता है। यानी तत्व ज्ञान आ रहा है, इसका जो आपको एविडेंस अगर कोई चाहिए तो वो एविडेंस है कि आपको जो अवेलेबल है, यानी जो अनअवेलेबल है उसकी चाहत तो छोड़ दीजिए, जो अवेलेबल है उसके प्रति भी अरुचि हो गई है। और इसका उल्टा भी सही है कि जैसे जैसे उत्तम तत्व आपकी संवित्ति में आता जाता है, वैसे वैसे आपकी सुलभ विषयों के प्रति भी विरक्ति होने लगती है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, और वही श्लोक है जिसमें कि पहला चरण दूसरा हो जाता है और दूसरा पहला हो जाता है। प्रमाण सागर जी कहते हैं कि भक्ति कैसे करें, तो कहते हैं दर्शनार्थी बनकर नहीं, शरणार्थी बनकर भक्ति करनी चाहिए। विशाल, आपने हैंड रेस किया, कोई क्वेश्चन? हाँ, तो उसी में पूछा था कि ऐसे भी और भी कोई कॉमन, अगेन पुटिंग इट वेरी सिंपली, कॉमन मिस्टेक्स हैं भक्ति करते हुए। जैसे आपने कहा कि विरक्ति होना चाहिए भक्ति करते करते, उसमें एकदम उसी को उद्देश्य नहीं मान लें हम कि हमें तो इसी में ही करना है। ऐसे और भी कोई कॉमन मिस्टेक्स इन डे टू डे लाइफ, प्रसाद यू सी और वाइके अंकल और कमल अंकल, which one should just
avoid, keep in mind. एटलीस्ट मैं जनरल कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगा, फिर वाईके अंकल और कमल अंकल के पास शास्त्र और डीप में जाएंगे। बट मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा भक्ति में बहुत ज्यादा मन पहले नहीं लगता था। ओवर द इयर्स अब मुझे लगता है कि मेरा भक्ति में ज्यादा मन लगने लगा है, और खास करके जब मीनिंग के साथ, शांति के साथ बैठ करके मैं भक्ति करता हूँ, तब मुझे लगता है कि इस आधे घंटे की भक्ति में मुझे काफी शांति मिली और एक तरह से मेरी आकुलता व्याकुलता थोड़ी कम हुई, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरे लिए खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैं भक्ति करता हूँ तो एक मीनिंगफुल, जब मीनिंग जान करके पूजा के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं या श्रद्धा भक्ति में क्या पढ़ रहे हैं, तीर्थंकर प्रतिमा के सामने हम क्या करने जा रहे हैं, क्या ये प्रतिमा को देख करके मेरे मन में क्या विचार और क्या भाव आ रहे हैं, तो जो सेल्फ रिफ्लेक्टिव बिहेवियर है, खुद का मेरा बिहेवियर, वो देख करके मैंने भक्ति करना शुरू किया। तो मुझे लगा भक्ति में थोड़ा बेनिफिट ज्यादा मुझे लगने लगा, और ह्यूमिलिटी जो ईगो सब्स्यूम करने वाला है वो मुझे लगा। और भक्ति में नॉर्मली रिस्क जो मैंने देखा है कि एक तो भक्ति में कि भाई मेरे को तो 4 पूजा करनी है तो करनी है, या मेरे को 1 घंटा पूजा करनी है तो करनी है, एक बार वो बैठने से एक माहौल तो बनता है, पर फिर अगर माइंड कहीं और रेस करने लग जाए तो वो भक्ति का बुरा बेनिफिट फिर नहीं मिल पाता है। ठीक है, आपने एक अपने दूसरे काम से बच गए, पर उस काम का शायद पूरा बेनिफिट उसमें नहीं मिल पाता है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि भक्ति में क्रियाओं में बिजी हो जाना एक तरह से वो भी है जरूरी, पर वो रूडिमेंट्री है, पहले स्टेज पे है कि भाई मुझे पहले बताया गया कि मंदिर जाओ, तब मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, बस मंदिर जाना था। पर जाने लगा तो प्रभु की प्रतिमा को देखकर अगर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा तो मेरा नॉलेज बढ़ा। तो जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाता है वो भक्ति का फॉर्म और शेप चेंज होते रहना चाहिए। तो अपने आप को, अपना एवोल्यूशन हम मेजर कर पाना चाहिए कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ, मुझे इस भक्ति से क्या बेनिफिट है। ये थॉट प्रोसेस बहुत क्रिटिकल है। उसके बिना जो नॉर्मली रूटीन से भक्ति करने लग जाते हैं, करना है इसीलिए करते हैं और करते रह जाएं, तो उसमें शायद बेनिफिट उतना ना मिले, ऐसा मुझे लगता है। तो दैट इज अ पिटफॉल कि बिना ध्यान, दो चीज इसमें बहुत मुझे याद आ रही हैं। एक तो ये कि तुम उसे छोड़ नहीं सकते, क्यों 6 आवश्यक, जब तक तुम श्रावक हो यू हैव टू कंटिन्यू, नंबर 1। नंबर 2, ये आचार्य श्री ने भी एक जगह के लिखा है इसी तरह से कि जब अर्थ समझ में आता है, जब ज्ञान होता है, तब भक्ति बेहतर होती। और क्षमा सागर जी महाराज भी कहते थे भाई खाली भक्ति तो स्टार्टर हो गया, लेकिन अब आगे जब चलोगे वो ज्ञान से चलोगे, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी वहीं भर करते रह के खड़े रहोगे एक ही जगह पर। क्षमा सागर महाराज हम लोगों को यहाँ तक बोला करते थे कि अगर पूजा अधूरी रह गई और तुम्हारा मन भटक रहा है तो तुम नौवा नमोकार मंत्र करके हाथ जोड़ो, लेकिन करो भाव सहित पूरे मन से। ये नहीं कि मुझे कोटा पूरा करना है 4 पूजाओं का या 3 पूजाओं। एक इसमें पॉइंट जो भाई ने बोला शायद इसमें थोड़ा पार्शली कवर होगा। भक्ति का एक क्राइटेरिया है वैराग्य, और उस वैराग्य से फिर आगे तीसरी स्टेज पे आती वीतराग। तो क्या मैं वीतरागता की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्या मैं वैराग्य की तरफ बढ़ रहा हूँ? पहली स्टेज में वैराग और फाइनल स्टेज में वीतराग, लेकिन ये ओवरलैपिंग भी है इनकी। तो वीतरागता हमारे अंदर आ रही है या नहीं आ रही? तो जैसा प्रशांत ने कहा, क्षमा सागर महाराज बोला करते थे, जब भी दर्शन करो तो बाकी 3 गुणों में 2 गुण तो तुम समझ नहीं पाओगे, हितोपदेशी और सर्वज्ञता, लेकिन वीतरागता तुमको प्रत्यक्ष दिख रही है, उस पर कंसंट्रेट करो। वो तुम्हारी भक्ति का मेन एम होना चाहिए। अंकल बहुत बेसिक क्वेश्चन, वीतराग, वीत मीनिंग क्या होता है? मतलब शाब्दिक अर्थ मतलब वीतराग है, अंडरस्टैंड कि जिसको राग द्वेष नहीं है, लेकिन वीत का क्या मतलब है? हाँ, वीत मीन्स बीत गया, निपट गया, खत्म हो गया। कौन? राग। द्वेष क्यों नहीं बोला? राग में द्वेष बहुत इजी होता है। राग में द्वेष समाहित है, उसमें समाहित भी और वो इजी भी होता है। द्वेष समाहित है, यानी वीत। लेटर स्टेज पे अपन को राग खत्म करना है। भगवान को वीतराग बोलते हैं क्योंकि राग डिफिकल्ट है, और जैसा कमल भाई ने कहा उसमें समाहित भी हो गया द्वेष, है ना।
तो बीत गया हो राग जिनका वे बीत रागी। राइट, थैंक यू। या और मुझे लगता है कि विनय संपन्नता यानी कि विनय होना, कि भाई मैं विनय हूँ, विनय में ह्यूमिलिटी आती है और उसमें भी मान कषाय और कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। और सिमिलरली भक्ति में भी मुझे लगता है कि जब तक कि आप में वो एक तरह का ह्यूमिलिटी नहीं आता है कि मैं अपनी व्हाई एम आई बेंडिंग, एम आई एबल टू रिकॉग्नाइज मेरी वीकनेस क्या है, मेरे गैप्स क्या है, उस पर रिफ्लेक्ट करके जो गैप मैं कवर करना चाह रहा हूँ, ये गैप अगर शायद हम कवर ना करें, ये दो में शायद मुझे लगता है कि अगर ना हो तो भक्ति ठीक से हो नहीं पाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। ग्राह्यता तो आती नहीं ना, बिना बिना विनय के ग्राह्यता तो आती नहीं। आप कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। अगर आपको, आपका लक्ष्य ये है कि आप जो आपके आराध्य हैं उनके गुण आप में आए, तो गुण की ग्राह्यता तो तब भी आएगी कि जब आप अपना ईगो निकाल के अलग रख दें, छोड़कर आए बाहर। मंदिर के बाहर वो जब जूते उतारे जाते हैं तो उसके साथ साथ अपना अहम भी उतारना होता है, वो भी उतार के जाना चाहिए। बिना उसे अहम को लेकर आप नहीं जा सकते मंदिर के अंदर। इस भाई ने वो क्वेश्चन किया था, एक ये भी क्राइटेरिया है, विनय अपने अंदर कमी है या लानी है तो सबसे इजी है भगवान की भक्ति, उसमें हमको कोई डाउट नहीं होता, ही इज द सुप्रीम। उसके बाद गुरु की भक्ति, गुरु के बाद अपन अपने साधर्मी भाइयों के साथ विनयशील हैं, और चौथी स्टेज पर अपने छोटों के साथ में विनयशील। तो भक्ति के एक ये भी 4 सोपान बन जाएंगे, क्राइटेरिया बन जाएगा हमारे। कमल भाई ने काफी डराया था मुझे कि ये सिर्फ 1 घंटे का होगा, तो मैं जरा याद दिला दूं कि ये बच गए। थैंक यू अंकल। इतना अमेजिंग डिस्कशन होता है कि मतलब पता भी नहीं चलता है, और आप बड़ी ही मतलब अब मैं क्या बोलूं, आपकी पर्सनैलिटी के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक सामने आते रहते हैं हर सेशन में, और बड़ी ही सिंप्लिसिटी से आप हम लोगों को रास्ते पे ले आते हैं। और जैन का, how do we combine karma and bhakti in practical professional life for ourselves? तो कर्मा और कर्मा का अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में लूं, तो कर्मा से हम ये मान रहे हैं कि पुरुषार्थ, कि भाई हम कह रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो जैनिज्म में आता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ या 4 कर्म हमारे होते हैं। We have to put efforts for achieving all the 4 objectives: dharma, arth, which is finance; काम, which is all the luxuries of life; और मोक्ष, which is the pure salvation. तो ये 4 जो है, these are 4 objectives. और ये 4 objectives में मैंने ये माना है कि अगर आप कितने भी सक्सेसफुल लीडर्स को देखो, या फिर वो रेमंड्स का एड देखो, आपके सक्सेसफुल आदमी को गोल्फ खेलते हुए दिखाएंगे, कल्चरल एक्टिविटी में घोड़े पे बैठते हुए अपने ट्रेडिशनल क्लोथ में दिखाएंगे, फिर एक प्रोफेशनल कपड़ों में उसे बोर्ड मीटिंग में दिखाएंगे। तो दोज आर ऑल द डायमेंशंस ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर। तो आई बिलीव दैट भक्ति इज ओनली वन एस्पेक्ट जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में आती है। अब प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में मेरे करियर में वर्क इज वर्शिप, ये था पहला कॉन्सेप्ट कि वर्क इज वर्शिप। सो आई ऑल्सो इंक्लूडेड for me work is worship, and when I'm at work I will give my 100% to work, and therefore I will idolize great leaders, I will work like them, I will become successful like them, I will align myself with the objectives of the organization, उनका vision mission क्या है, उसके हिसाब से मैं अपने goals को match करूंगा ताकि I'm able to give 100% to the organization। तो इस तरह से मैंने benefit देखा है भक्ति का in the professional parlance कि organization में vision mission क्या है, मेरे सीईओ या मेरे लीडर को क्या अचीव करना है, मैं उससे अपने आप को कैसे अलाइन कर लूं। उसी तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं, तीर्थंकर के गुण क्या है, मेरे गुण क्या है, दोनों में गैप क्या है, मैं उनकी तरह कैसे बन जाऊं। और ऑर्गेनाइजेशन में आप उसी की तरह कर रहे हैं कि व्हाट इज द विजन मिशन ऑफ माय सीईओ, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स दैट ही वांट्स टू अचीव, व्हाट इज इट दैट आई एम डूइंग, हाउ कैन आई अलाइन विद दैट। अगर मैं वो प्रोफेशनली कर लूं तो आई थिंक दोनों में माइंडसेट सेम है। ये माइंडसेट अगर भक्ति में आ जाए, उसी को आप प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप देखोगे बेनिफिट आता है। क्योंकि जब पर्सनालिटी चेंज होती है तो वो भक्ति में भी काम आती है और प्रोफेशन में भी काम आ जाती है।
तो दिस माइंडसेट इज अमेजिंग. वंस यू डेवलप दिस माइंडसेट, भले ही वो प्रोफेशनल में हो या पर्सनल में हो, आई थिंक द बेनिफिट्स विल बी द सेम. आई होप पुनीत भैया दिस वाज योर expectation. If not, I think we are happy to discuss for a couple of minutes more. बहुत अच्छा एग्जांपल दिया. Good. It meets the requirement. I think I am able to connect it. Thank you. बस मेरा एक का प्रश्न है, और फिर अगर किसी और का कोई पेंडिंग है तो वो लेके, और हम भाई के अंकल जल्दी से ही रैप करेंगे. थोड़े से ग्रीडी हो जाते हैं, थोड़ा सा लोभ कषाय आ जाता है यहाँ पर कि थोड़ा और ज्ञान मिल जाए. तो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है. तो मेरा क्वेश्चन था कि भैया आपने कहा था कि आचार्य भक्ति, अरहत भक्ति भी शुभ भाव है, शुद्ध भाव नहीं है. तो और मतलब किस गुण स्थान में शुभ भाव रहते हैं और शुद्ध भाव किन गुण स्थान में बनते हैं, क्योंकि मुझे गुण स्थानों का कम आइडिया है. अगर आइडिया कम है तो फिर पूछ क्यों रही हो, समझेगी कैसे? नहीं, वो तो समझ आ जाएगा ना, मतलब ये पता चलेगा कि भाई 12वें तक तो पहुंचना ही पहुंचना, 4वें तक 12वें से बिल्वा के आ जाओगे क्या? नहीं भाई के अंकल, ये मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा झगड़ा यही है. प्लीज झगड़ा, देखो मेरे पापा मम्मी प्रतिमाधारी हैं, और वो प्रतिमाधारी और मैंने व्रत धारण नहीं किए हैं. तो मुझे बड़ा रहता है कि भाई आपका गुणस्थान बढ़ रहा है, मेरा नहीं बढ़ रहा है, ये तो नाइंसाफी है. तो बॉर्डर लाइन चौथा गुणस्थान है कि भाई हमारे लिए जो है ना, चौथा गुणस्थान, फोर्थ गुणस्थान बॉर्डर लाइन है. मेरे पास व्रत संयम नहीं है, उनके पास व्रत संयम है. मैक्सिमम आई कैन अचीव इज फोर्थ गुणस्थान, और उसके ऊपर जाएंगे तो ही मेरे ख्याल से यू विल स्टार्ट गेटिंग इनटू द हायर गुणस्थान. ये बॉर्डर मैंने अपने लिए बनाया हुआ है कि भाई पहले वहां तो पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं आगे का देखूंगा, बाकी के आगे अपने आप आएंगे. पर पहला फोर्थ है बॉर्डर लाइन, जहाँ पे व्रत धारण नहीं करते हैं. व्रत धारण करने के बाद अविरत और व्रत गुणस्थान जो है, ये मेरा बैरियर है. पर वाई के अंकल, कमल अंकल, आपके लिए चौथे गुणस्थान तो सभी के लिए है, और दुर्भाग्य ये है कि चौथे गुणस्थान वाले टिप्स पर हैं, लिमिटेड हैं. तो पहला तो गोल यही हो गया, चौथा. फिर व्रत के साथ 5वां गुणस्थान हो गया, है ना. और उसके बाद जो स्वाति का प्रश्न है, उसका जवाब ये है कि 7वें गुणस्थान के निवृत्ति अवस्था से ये सब शुरू होगी कि भक्ति हम बंद करें. 7वें गुण स्थान की प्रवृत्ति में भी भक्ति चलेगी, उसके बाद भक्ति बंद होगी, फिर वो ध्यान आदि में लीन हो जाते हैं. तो 7वें गुण स्थान का सेकंड पार्ट, लेटर पार्ट, वहां पर ये भक्ति बंद. राइट, ठीक है. थैंक यू अंकल. अच्छा, एक और बता दूं स्वाति, ये मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे तो मैसेज मिला था कमल जी के थ्रू कि बहुत लंबा खिंच जाता है, तो इस बार शायद इशारा कर रहे होंगे, आप बहुत बोलते हैं और बहुत प्रश्न करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल रखना. नहीं, मतलब 9:15 तक तो हमने कियावत अंकल को भी प्रॉमिस कर रखा है कि हम रैप अप कर देंगे. तो बट एनी अदर क्वेश्चंस? कियावत अंकल, आपके कोई प्रश्न है, किसी और के कोई प्रश्न है? बस within 5 minutes we will wrap up. So मेरा में भी एक क्वेश्चन है कि again प्रशांत, you mentioned कि right brain और left brain. Often my mind applies the right brain, the analytical brain. When I go to मंदिर जी में रोज, तो कई बार जो होता है कि I'm still trying to connect more on the artistic side. So how to do that? I know you've gone to the same phase you mentioned. Any last word there? तो एक बहुत अपने योग में और अपने इसमें कहते हैं कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन डेवलप करने के लिए आसन है. तो लेफ्ट ब्रेन एनालिटिकल होता है, और लेफ्ट ब्रेन मैथमेटिकल लॉजिकल होता है, और लेफ्ट ब्रेन टैंजिबल यानी कि फिजिकल प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग माइंडसेट होता है. और राइट ब्रेन से जो है क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल कोशेंट राइट ब्रेन से डेवलप होता है. तो योग में कुछ आसन है, जैसे ताड़ासन और ऐसे आसन है योग में, बहुत सिंपल आसन है, जो कि आप लेफ्ट से करोगे, लेफ्ट वाले बॉडी पार्ट से, तो लेफ्ट ब्रेन डेवलप होगा, और राइट वाले बॉडी पार्ट से करोगे तो राइट ब्रेन डेवलप होगा. तो ऐसे ताड़ासन, वृक्षासन,
और नटराज आसन ऐसे आसन हैं जो आप एक पैर से कर सकते हो और दूसरा ब्रेन डेवलप कर सकते हो। तो दीज आर मेथड्स जिससे हम अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं। और इसके कुछ एनालिटिकल टेस्ट भी हैं। वो सॉफ्टवेयर अब काम कर नहीं रहा है मेरे कंप्यूटर पे, पहले वाले कंप्यूटर पे काम करता था, अब सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने के बाद उसमें ब्रेन टेस्ट आप कर सकते हैं। तो ब्रेन की मैपिंग होती है साइकोमेट्रिक क्वेश्चन से, ऑडियो विजुअल लेफ्ट एंड राइट। तो काइंड ऑफ दे प्लेस योर ब्रेन कि आपका जो माइंड है वो कहाँ पे है। और यू कैन अगर वो आपने टेस्ट करी हो तो हर साल 2 साल में आप वो टेस्ट करके अपने खुद का प्रोग्रेशन आप चेक कर सकते हो। तो ये सॉफ्टवेयर मेरे पास था 98-99 में, तब मेरा ब्रेन पूरी तरह से लेफ्ट था, कंप्लीटली लेफ्ट ओरिएंटेड था। जब ये टेस्ट मैंने कुछ 6-7 साल बाद किया तो इट केम समवेयर इन द मिडिल। ऑडियो विजुअल में मेरा ऑडियो ज्यादा था पहले, अभी काफी चेंज हो चुका है। पिछली बार मैंने जब 4-5 साल पहले किया था तो इट वाज प्रीटी मच समवेयर इन द मिडिल। तो जैसे जैसे वो आई थिंक द मोर यू नो कीप प्रैक्टिसिंग लिसनिंग टू डिफरेंट फिलॉसफीज, वो डेवलप होता रहता है। इट इज चेंजेबल। नहीं, इसको तुम क्रेडिट योगा को दे रहे हो या अपनी स्पिरिचुअल स्टडीज को? मोहनीय कर्म दब रहा है। अब उसका निमित्त तो वैसे मैं कहूंगा कि धर्म ही है, पर एक तरह से पर्सपेक्टिव चेंज होना लाइफ में जो है नॉलेज से ही होता है। और एक पक्ष जो रिलीजन से भी मिलता है, डेफिनेटली उससे एक बहुत फर्क पड़ता है। मेडिटेशन, रिलीजन और पर्सपेक्टिव। भक्ति वाला पार्ट मेरा काफी, विनय और भक्ति में मैं पीछे था, भैया मेरा काफी आगे रहा है हमेशा उसमें। तो आई थिंक वो मैं उनको भी देख करके मुझे लगता है कि हाँ ये एक एस्पेक्ट मुझे डेवलप करना था, तो मुझे लगता है मुझे डेवलप हो रहा है। नहीं, यहाँ पर तो शायद तुम गलत हो प्रशांत, क्योंकि मैं तो तुमको बड़ौदा से देख रहा हूँ और विनयशीलता में तो मेरे ख्याल से तुम्हारे नंबर कोई कम तो नहीं थे। आप लोगों के द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव का ही असर है और कुछ। ये भी विनयशीलता का ही उदाहरण है ना। हाँ, एक और एग्जांपल दे दिया तुमने। ये भी विनयशीलता का ही उदाहरण है। Any other question? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन प्रशांत इतना दे देता है कि लोगों को प्रश्न, और इतना बढ़िया से एक्सप्लेन कर देता है कि लोगों को प्रश्न बचते ही नहीं है। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रशांत, बहुत अच्छा, बहुत ही थैंक यू सो मच प्रशांत भैया। अमेजिंग सेशन in all ways. Not only the spiritual and the religious knowledge part of it, but leadership and professional aspects. मतलब आपने जो जैनिन का जो वो है फिलॉसफी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, दोनों को लेके चले हैं और बहुत ही अच्छे से। और मुझे तो ये लग रहा था कि मतलब एक क्षण भी नहीं मिस कर सकते इस सेशन को। जहाँ एक 2 मिनट के लिए मेरा थोड़ा ध्यान इधर उधर भटक गया था, वहां मैंने ही मिस किया है हियर द रिकॉर्डिंग। बट अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच, and look forward to having more of your session and having you regularly on the sessions so that we can get your knowledge. All of us can also get your knowledge during the course of all the sessions. Thank you so much. कमल भाई ने इन्फॉर्म किया, उसके बाद मुझे पास कोई लिंक नहीं आई, मुझे पता ही नहीं, मुझे आज ज्यादा आता नहीं है। अब इन्फॉर्मेशन से मैं कहाँ कैसे पहुंचूं? पहले लिंक भेजता था, ये वो कहाँ गया? उसने बंद कर दिया विपुल ने भेजना। तो लिंक भेजनी चाहिए हम जैसे लोगों के लिए, बहुत इजी होता है। हाँ, नहीं, वो लिंक वो थोड़ा सा कुछ हो गया था, लेकिन लिंक बिल्कुल भेजना चाहिए। और मैं भी पता नहीं, मेरे पास आपके नंबर का व्हाट्सएप भी नहीं चला, तो मैं भी फॉरवर्ड नहीं कर पाई। बट मैंने व्हाट्सएप किया आपको आज। हाँ, मुझे किया?